IDC Sahaf is quite encouraging for us. DAO Tiraf, Superintendent Tax and Excise and Narcotics Department, other HODs from different departments, learned colleagues, and my dear students. It is my privilege to extend a warm welcome to all of you to today's awareness program on illicit opium poppy cultivation and drug abuse. Especially the presence of IDC Sahaf is quite encouraging for us to attend this program today. Children drug abuse is a serious matter for our society these days. People may think that it is just an addiction to drugs, but with this drugs addiction, along with it, so many deadly diseases like HIV/AIDS, hepatitis B and C are spreading like anything in our society. So, availing this opportunity, today let us all acquire the insights, whatever the resource persons are providing today. So I request all the teachers and the students to give decorum up to this program and listen silently, because we will not be conducting such programs every now and then. So once in a year we are having such programs. So let us avail this opportunity today. Once again, I welcome you all to today's program. Thank you. Thank you so much for your welcome. Now I would like to invite on stage Superintendent Tax, Excise and Narcotics to take the time. Please on the stage, madam. Respected ADC sir, Dr. Rakshed, members of ENCODE, principal of the school, teachers and all the students present here, a very good morning to you all.
Today, we are here on a very important mission. As you have seen on the banner here, we have come here to give you awareness on drug abuses and on illicit opium cultivation. So, let me first tell you about illicit opium cultivation. You all know poppy, right? Have you seen poppy flowers? Poppy फूल आपने देखा है? It looks very beautiful, right? But the derivatives is produced into drugs. And when we misuse it, it affects our health, it affects our society. Opium is used not only, it is used for medicines. When we say drugs, the medicines that we take, it is also a drug. Opium is also used by the pharmaceutical industries for preparation of medicines, which is good for our health. But once we misuse it, it becomes a menace for the society and for us all. So I'll not be taking much time because the other speakers will be telling you about the abuses of drugs, its ill effects. So let me tell you about the penal provisions when you cultivate opium. Let me tell you all, cultivation of opium is illegal. Until and unless you have a license from the government, you cannot cultivate opium. But in India, only selective states are allowed to cultivate opium. And for the rest of us all, it's illegal to cultivate opium. So under Section 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, cultivating opium is an offense. And under Section 42 of the same act, if anyone is found cultivating opium or selling opium, an authorized officer can come, search and make arrest. So this act you all should be aware of. Section 18 of the act says that whoever cultivates opium, you will be penalized and you have to pay fine, which will vary from 10,000 to 20, and you will be imprisoned for a year. Or in some cases, you may have to pay a fine of 10,000, and at the same time, you will also be imprisoned for a year. And when you have opium, which is in a commercial quantity, you will be liable for imprisonment for 10 to 20 years and a fine of 1 lakh to 12 lakhs. And in any other cases, it is a rigorous imprisonment of 10 years and fine up to 1 lakh. This cultivation opium, its selling and its consumption is under Section 37 of the Act is a cognizable offense, and for that you will not, and it is non-bailable. You all must have got these pamphlets which we have distributed. So I request you children, when you go back home, just have a look at it. You as a student, as an upcoming officers, because among you today, some of you will be an IAS officer, an IPS officer, narcotics officer. You all will have to be a responsible citizen. So as a responsible citizen, it is duty of each and every one of us to know about all the consequences which drugs brings to our society, and you must be aware of that there are certain laws which you have to follow, and if you don't, it is an offense. And furthermore, Section 31A of the same Act, there is a death penalty also. And Section 46 of the Act says, whoever cultivates opium, or if the landowner knows that somebody is illegally cultivating opium in his fields, it is his responsibility to tell about the illegal cultivation to the authorized officers. And in case he doesn't do that, he will also be liable for punishments. So these are the legal provisions under the NDPS Act. So when you go back home, please have a look at this. And about drugs, as you all know, that we as a society is fighting against drug menace.
And there are many youths who have fallen into the trap of the drug menace. And you, the younger generation, today, whatever you listen, whatever you hear, you don't just hear from one ear and let it go through the other ear. When you leave this place, you'll get enough knowledge about this. So when you go out, it will be your duty and your responsibility to pass on that awareness to others. You be aware yourself, you make your family aware, you make your friends aware. You all know drugs, it affects our health, our body, our mind. It affects so much our family. And we need to fight these drugs together as one. Thank you for giving me patient listening. Life, we have only one life. Am I audible? Okay. We get life only once. जिंदगी हमें सिर्फ एक बार ही मिलेगी, तो उसको आप सही तरह से जीना. You say no to drugs and say yes to life. Thank you. Thank you so much, ma'am. Proper understanding of the illicit opium cultivation and its impact on Very, very good morning to you all. Most respected ADC sir, principal sir, all my revered teachers, Monica ma'am, and beloved students, brothers and sisters. In schools compound, Sir, please concentrate. what No. come into our mind, that is why we came here. This is just like temple, church, mandir. We came here just to learn. Learning for what purpose? Learning, we enter into the school to learn. When we leave the school, then our duty to serve our nation, to serve our society. So in the school, there is the preparatory center to prepare ourselves, to educate ourselves, and when we leave the school, we'll disseminate our knowledge, information to the society to build up our society healthy. So just being a doctor, it's not only my duty to treat the patient only. That is the curative treatment. Already I used to do in the hospital during my duty hours. But beyond your normal duties, as a student, you have to think in different way. That is what should be my contribution to my society, to my nation, to my country. That is the thing you have to think twice, thrice, several times. And as a citizen of India, it's our duty to make our nation great. Don't keep anything for tomorrow. So जो भी करना है, आज ये promise लेना है. This is the platform. Will not go for the drugs and will not let some others to do it. मैं खुद भी ड्रग्स नहीं लगे, दूसरों को भी ये काम करने नहीं दूंगा. तो मैडम ने लास्ट टेक होम मैसेज में बोला, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू योर हेल्दी लाइफ एंड बेटर फ्यूचर. So these are the things I am telling you beyond your textbook reading or anything else. That is, in medicine we have to follow the evidence-based medicine. All the books are written by most of the foreigners, Englishmen, American. So what is applicable in our country, what is prevalent in my Khunsa, in my district, that I concentrate more. I am not give concentration with other subjects. I am giving concentration the disease prevalent in our district, in our country. So I am also telling you
the burning problem you have to think, that is the drug. Now, in your village also you will see some are suffering from this drug abuse. So, and gradually the family is disturbed. Suppose सोसाइटी में जो गलती कर लिया उसको आप अवॉइड नहीं करना, लेकिन उनको भी समझाना है। कोई आपका दोस्त गलती कर लिया, स्मोक कर लिया, दारू पी लिया, उनको समझाना है उसका इल इफेक्ट्स क्या है, लेकिन उसका साथ दोस्ती नहीं करना, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। तो आपका भाई बहन भी कोई गलती कर लिया तो उसको समझाना, दैट इज आवर ड्यूटी। तो ग्रेट मैन सेइंग्स, इसलिए आप लोग को सैटरडे ना होल वीक जो पढ़ाई किया, सैटरडे एक बार कॉपी सब देखोगे और संडे प्लान बनाओगे, नेक्स्ट मंडे से आप सैटरडे तक क्या क्या काम करोगे। दिस इज ऑल्सो स्मॉल टिप्स फ्रॉम माई साइड। तो आज भी यहाँ पे जो कुछ आप सीखोगे एक डायरी में नोट करोगे और कल प्लान करना है मंडे से नेक्स्ट सैटरडे तक आप क्या क्या करोगे। माई learnings or experience I will share with my students, brothers and sisters, because they are the future nation. I hope so much from you. You are the young people and you can do the best. आपको क्या करना, आपको मेनली ये ध्यान देना है, चलो जो भी सोसाइटी में चलने से हो, लेकिन इसका इल इफेक्ट है, मेरा तबीयत खराब हो रहा है, मेरा फैमिली बर्बाद हो रहा है, इसलिए ये चीज़ मैं नहीं छुएंगे और दूसरों को भी पीने नहीं दूंगा, उनको समझाऊंगा। इफेक्ट ऑन बॉडी एंड माइंड, आपका बॉडी का पर क्या असर पड़ता है और मन का पर ब्रेन में क्या होता है। जो लोग नशा का चीज़ लेते हैं ना, उन लोग अच्छे से सोच भी नहीं सकते, हमेशा नींद में ज़्यादा लेने से तो गहरा नींद में भी चले जाते हैं और कोमा होके अनकॉन्शियस होके उसका डेथ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग नशे का चीज़ में हाथ मत लगाओ, वो नशे का गोली हो, दारू ही हो और कुछ इंजेक्टेबल ड्रग्स हो, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। उसके बाद हार्ट एंड लंग्स में क्या करते हैं, आपका लंग्स कैपेसिटी कम हो जाएगा। जैसे कि आप फेफड़ा में ऑक्सीजन घुस रहा है ना, आपका लंग एक्सपेंशन हो रहा है, देन यू कैन वॉक, यू कैन वर्क ऑल्सो। लेकिन आप जब ओपियम लेंगे, स्मोकिंग करेंगे, तब क्या होगा, आपका लंग्स में ऐसा ही ये आइडिया है, बीड़ी पीने से ही आपका ये होता है क्या, टीबी होगा, लेकिन लंग कैंसर भी हो सकता है। तो सर एक सिगरेट पीने से होगा नहीं, एक से धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगा। आज एक पिया तो कल दोबारा पीने का दिल होगा, दैट इज नोन एज डिपेंडेंसी। तो एडिक्शन का दिस आर द स्टेप्स, आई विल टेल यू। शुरू से आदमी एडिक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे एडिक्शन होता है, इसलिए शुरू में ही इसको बुझाना जरूरी है। यू हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। उसके बाद लीवर किडनी, जो अल्कोहल लेते हैं उसको तो मालूम है दिस इज हेपाटोटॉक्सिक, तब भी आदमी लोग जान बुझ के भी जितना ये है उससे ज़्यादा ही ले लेते हैं, तब लीवर में इफेक्ट होता है, स्टोमक अल्सर होते हैं। और एक पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर सर्वे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो हम लोग का ईस्टर्न अरुणाचल के हेडक्वार्टर है पासीघाट में। हम लोग स्टडी करके देखा है आजकल जितना लिवर स्टोमक कैंसर हो रहा है उसका मेन कारण है हम लोग का खान पान। हम लोग को याद करो, दे आर द लिविंग गॉड, यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर एल्स, बट अपना घर को अच्छे से रखो, खुद बी गुड एंड डू गुड, दैट इज द gist ऑफ रिलीजन सेड बाय स्वामी विवेकानंद। तो धर्म शर्म जितना भी आप मानो, लेकिन खुद अच्छा नहीं होगा, दूसरों को भलाई नहीं करेगा, वो हिमालय का पर बैठ के मेडिटेशन करने से भी फायदा नहीं है। एंड आपका बॉडी का बारे में तो बता दिया, अभी माइंड का बारे में बताओ। तो ड्रग्स का चीज़, नशा का चीज़ लेते हैं, माइंड में क्या असर होता है।
आपका आप कुछ चीज़ में कंसंट्रेशन कर नहीं पाओगे। पढ़ाई कर रहे ना आपको नहीं रहेगा, आप कुछ काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपको मन नहीं लगेगा काम करने का, हमेशा आपको नेगेटिव या आएगा और सोने का दिल होगा। तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल एंड डिनामिक। अब चुपचाप सोने से नहीं होगा, आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का लिए पीछे कौन चीज़ है? ड्रग्स हमको हमेशा पीछे लेके जाएगा, बैक गियर में चलोगे तो आगे जाना है, तो आपको गियर भी चेंज करना पड़ेगा। आप न्यूट्रल में है, अभी 1 नंबर लगा हुआ है, धीरे धीरे 2, 3 ऐसा आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन ड्रग्स लोगे तो आपका फर्स्ट में बैक गियर लग जाएगा, आप पीछे हटोगे, ठीक है ना? ओके, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन फैमिली? हाँ, सपोज मैं ड्रग्स लेता हूँ तो मेरा तो हेल्थ खराब हो रहा है, मेरे लिए मेरा मम्मी दिन भर रुकते रहेंगे, मेरा बेटा कब आएंगे, वो इतना रात हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, अभी तक क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो नशा करते हो वो तो दोस्त लोग का सब बाहर में बैठ के कर रहे हैं ना, वो उसको पापा मम्मी का ये ध्यान ही नहीं है। लेकिन फैमिली वाला लोग बहुत सफ़र करते हैं। तो अब जब पापा मम्मी को याद करोगे, अपना फैमिली को याद करोगे, कभी भी आप गलत रास्ते पे पैर नहीं रखोगे। ये मेरा कहने का इसके मतलब है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो। अस तो पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स लोग को साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग जितना भी पढ़ाई का बाद थोड़ा टाइम मिलने से आपका पापा मम्मी जो घर पे बुजुर्ग है, ग्रैंडपा ग्रैनी, इन लोग का साथ भी टाइम बिताओ, क्योंकि एक दिन हम लोग भी ऐसा बुढ़ापन हम लोग को भी आएगा तो तब हो जाता है। तो इतना तक नहीं पहुंचने का पहले आपको यू हैव टू से इन योर सेल्फ, नो आई विल नॉट टच। और मैं गलती कर लिया तो मुझे भी समझोगे, सर ऐसा नहीं करना है, भैया ऐसा नहीं करना है, तो दूसरों को भी ऐसा अब समझोगे। बात तो हम लोग का समझ में आ गया, नशा का चीज़ ड्रग्स बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन ये है उसी से मैं कैसे आपको दूर रखूं? हाउ आई कैन कीप मिसेल्फ अवे फ्रॉम द ड्रग्स? फर्स्ट थिंग, मैडम ने बहुत एकदम टेक होम मैसेज जैसा बोला, सुना है ना, लास्ट डाइट क्या था? से नो टू ड्रग्स। एकदम इसी से आपका साथ आपका दोस्त का रिलेशन खराब नहीं होगा, लेकिन एक दिन वो सोचेगा मेरा दोस्त सही था, हमको सही लेसन नहीं दिया था। और सेकंड है, चूज द गुड कंपेनियन। सत्संग स्वर्गवास, असत्संग सर्वनाश। जो संग होता है ना, गुड कंपनी, उसी को आप ढूंढ के अच्छा दोस्त का साथ मिलना जुलना है, ठीक है। और तो सर दिन भर से पढ़ाई करूँगा और कभी कभी तो बहुत सुस्ती भी लगते हैं, तो आप लोग स्पोर्ट्स में जैसा भैया एक भाई ने अभी गाना सुना है, मैं तो बाकी सब भूल गया, उसका गाना में खो गया था, इतना सुंदर। कंग्रेचुलेट हिम, गिव क्लैप फॉर हिम। पता नहीं है मेरा ये भाई एक दिन इंडियन आइडल बन सकता है, हाँ ठीक है, अरिजीत सिंह जैसा सिंगर बनेगा, लेकिन वॉइस तो मुझे थोड़ा सोनू निगम जैसे ही लगा है। ठीक है, चलो सोनू भी अच्छा सिंगर है। You enjoy it, and whenever you get time, Saturday good time। तो सैटरडे टाइम में हम लोग को नाइट क्लब जाने का जरूरी नहीं है, अपना घर में क्लब बनाऊंगा और अपना फैमिली मेंबर्स लोग ही मेंबर होंगे वही क्लब का। तो पापा मम्मी भाई बहन सबका साथ, वो एक गेम था ना, वो क्या नाम है वो गेम का? तो एक गाना मैं गा दिया, अंताक्षरी खेलोगे, ठीक है ठीक है, दैट इज गुड। ये सब स्पोर्ट्स मूड में करना पड़ेगा एंड फोकस ऑन योर गोल। आपको जिंदगी में क्या बनना है वो आप ही डिसाइड करोगे। ऐसा नहीं है चलो आप सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS IPS बनना है, ऐसा बात भी नहीं है। हम
को जो अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है जिसमें मेरा ध्यान है, कोई स्पोर्ट्समैन भी बनेंगे, जिसका जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आपको फोकस करना है। तो यू आर द मेकर ऑफ योर ओन फॉर्चून। आपको घर का आपको ठीक करना पड़ेगा। एंड इफ एनीवन सफर, सपोज आपको मैथ्स में थोड़ा कम मार्क्स मिल रहा है, नहीं तो इंग्लिश में कम मार्क्स मिल रहा है, तो मैथ्स टीचर का पास में आप थोड़ा जाएंगे, नहीं तो इंग्लिश जो सब्जेक्ट में आप वीक है उसके लिए वो टीचर का पास में जाके आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक ऐसा भी कोई नशा का चीज़ में ऐसा फंसा हुआ है, उसको आप थोड़ा हेल्प करना है। ऐसा नहीं है अरे मैं तो नहीं कर रहा, वो मरने से मरने दो, ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ एकदम धीरे धीरे ऐसा आ रहा है ना, मेरा उम्र में आप लोग भी एक दिन ऐसा हो जाओगे, जैसे कि कुछ फिलोसफी आप लोग को हमेशा ये कर गया। एक जगह में स्वामी विवेकानंद कहा था, जो खुद के लिए जी रहा है वो डेड है, alive are those who live for others। तो हम लोग का मन में भी ये आना चाहिए, जो सिर्फ मैं अपना हेल्थ ठीक रखूँगा, जिम में जाऊँगा, ऐसा नहीं है। जो कष्ट मिल रहा है उसको भी थोड़ा उठाना, चलो दवाई ले दिया, उसका बीमार ठीक हो गया, लेकिन हम लोग एक चीज़ और ध्यान देते हैं, दैट इज रिहेबिलिटेशन। मतलब जो नशा का चीज़ में फंसा हो उसको रिहेब में जाके ठीक हो गया, लेकिन वो जो सोसाइटी में आता है उसको कभी भी आप नफरत नहीं करना। दैट इज माई क्या बोला, तुम लोग को तो मैं एडवाइस दे ही सकता हूँ एज माई बिलवेड ब्रदर्स एंड सिस्टर। जैसे मैं घर में बात करते हूँ ऐसा, आई एम नॉट टेलिंग टू टीचर्स बट आई एम इंटरेक्टिंग विद आवर स्टूडेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर। जैसे कि कभी भी नफरत मत करो। इफ यू hate you cannot love। I told you ना what my mother Teresa told, प्यार से बोलो, अपना बना लो, तब देखो आदमी धीरे धीरे सुधर जाएगा। एक जगह में इसलिए उन्होंने कहा डोंट ब्लेम मौसके, ऐसा शर्म नहीं खिलाना है किसी को, अरे तू तो दारू पीता है, तू तो नशा का चीज़ लेता है, तू तो बहुत बुरा है, ऐसा नहीं बोलना है। और ऐसा सपोज घर में अब सुधरना नहीं सब रहे, उसको रिहेब सेंटर में लेके आना। कहाँ कहाँ है? चारजू में हम लोग का रिहेब सेंटर है, यहाँ पर टूपी विलेज में भी है, देवमाली में भी है 2-3 रिहेब सेंटर, तो जहाँ पे स्पेशलाइज्ड केयर होगा फॉर द एडिक्ट्स। जिसको घर में ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, जो लोग थोड़ा क्रॉनिक स्टेज में चला गया, उन लोग के लिए रिहेब सेंटर में भेजने का थोड़ा उपाय निकलना पड़ेगा। एंड द पॉजिटिव ये एटीट्यूड ये है, रिकवरी इज पॉसिबल। रिकवरी इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल बोल के कुछ ये नहीं है, बट इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ अस। सिर्फ डॉक्टर दवाई लिखने से सपोर्ट नहीं होता है, वो टेम्पोरेरी सपोर्ट। बट अदर्स ऐसे एक चीज़ है, सिर्फ आप अल्कोहल लिया, स्मोकिंग किया, लंग कैंसर हुआ, ड्रग्स लिया, ये दारू पिया, आपका लीवर खराब हुआ, लेकिन ड्रग्स आजकल जो होता है इंट्रावेनस ड्रग यूज़र जो ब्रेन में ले रहा है, उसका इफेक्ट ऐसा होता है ना, पता ही नहीं चलता है कब एयर बबल जाके आपका ब्रेन में चला गया। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बोल के एक चीज़ है, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो वेरी डेंजरस। आप सोच भी नहीं सकता, एक इंजेक्शन लिया सत मर गया, इसका मतलब उसको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो गया। इसलिए बी केयरफुल, एटलीस्ट इंट्रावेनस ड्रग्स नो 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 नेवर। यू शुड कम योर माइंड frequently that you can change yourself, that is no to drugs, yes to life. So thank you very much for your patience hearing. Thank you all. Thank you, sir, for sharing such insightful knowledge and practical
practical talks on drug abuse and its effect on health. Before I invite on stage the next presenter of today's program, I would like to give a brief introduction about him. We have here today with us one of the recovered addict. He was an addict, but now he is a recovered addict and also the counselor of one of the foundation of rehabilitation. So I would like to invite on stage Sri Yasong Teang to share his testimony. Please on the stage, Sri Teang. Most respected DCR, principal, learned teachers, HOD from various departments, and students. Very good morning. सबसे पहले कुछ जब हम वहाँ में बैठा था तो हमको कुछ चीज़ याद आ रहा था और हम दुख भी कर रहा था कि हम एक समय यहाँ का ही स्टूडेंट था. मैंने हाई सेकेंडरी यहाँ से किया है. एंड नाउ आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर 10 years, एक ऐसे हम लोग का डीसी सर ने हमको मौका दिया है एक स्टूडेंट को एक शेयरिंग रखने के लिए. इसलिए डीसी सर को भी बहुत थैंकफुल है. तो आज का ज़्यादा शेयरिंग तो नहीं है, फिर भी छोटा सा शेयरिंग मेरा लाइफ का बारे में नहीं हो गया. एक तो जस्ट लाइक मिसकॉन्सेप्शन और मिथ्स ऐसे जो हम लोग का लाइफ में ड्रग्स का लेने का कारण बनते आ रहा है उसका बारे में थोड़ा सा शेयर कर देगा. माय पॉइंट इज मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन. मिस जो ऐसा एक ऐसा कहानी जो हम लोग का सीनियर ने बताया वाला, इट इज नॉट ट्रू और डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट साइंटिफिकली प्रूफ. ऐसा कहानी सीनियर ने बताया वाला कहानी और उसको लेके गलत फहमी होना, मिसकंसेप्शन. तो नंबर 1 में मेरा आता है जब कोई अपना दोस्त या कोई ऐसे शेयरिंग डिस्कशन में हम लोग हमेशा एक ही बात करता है कि कोई एडिक्ट या कोई ऐसे सीनियर आपको बता रहा होगा कि आपका पेरेंट्स जो है ऑफिसर है या आप तो धनी घर का है, अच्छा घर का है, इसलिए आपको दारू पीने से और ड्रग्स पीने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप जो अच्छा घर का है, आपका पेरेंट्स जो ऑफिसर है, आपका पेरेंट्स जो धनी है, इसलिए तुम ड्रग्स पी सकते हैं, इसलिए तुम दारू पी सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसा हम लोग को एडवाइस या कुछ गलत मैसेज मिसगाइड किया जाता है. तो ऐसे में हम लोग वो होता है मिसकंसेप्शन, गलत फहमी. या आपका पास अच्छा नौकरी है इसलिए आप पी सकते हैं दारू, आपका पास अच्छा नौकरी है इसलिए आप पी सकते हैं ड्रग्स. ऐसा जब हम लोग को बताया जाता है या बोला जाता है फॉर सेकेंड, कुछ समय के लिए हम लोग ऐसे लगने लगता है कि हाँ ये सच है. हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाता है, स्पेशली चिल्ड्रन. जब बोलता है तेरा पेरेंट्स धनी है, तेरा पेरेंट्स नौकरी है, ऑफिसर है, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, तो आप थोड़ा देर के लिए भटक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है. इसलिए बताया कि कोई एडवाइस करने वाला जो झूठ, जो सच नहीं है, वो झूठ को मिसकंसेप्शन में बदल देता है. और सेकेंड में हम लोग का क्या आता है, हम लोग सोचते हैं ड्रग्स, अल्कोहल इनहेंस सेक्स परफॉर्मेंस. ये बहुत बड़ा गलत फहमी में जी रहा है कि ड्रग्स और अल्कोहल, स्पेशली यंग बॉयज, यंग गर्ल्स, ड्रग्स, अल्कोहल इनहेंस सेक्सुअल परफॉर्मेंस. ऐसा बहुत सारा मिसगाइड होता है जो इनफैक्ट रियलिटी में होता है, वो बता रहे हैं. और आप लोग का साथ भी क्या पता ऐसे हो भी सकता है या आप लोग को ऐसे मैसेज भी आपको सुनने में भी मिलेगा हुआ इन फ्यूचर, अपना सीनियर से या कोई एडिक्ट से या आपका कोई बदमाश वाला दोस्त से सुनने भी मिलेगा होगा कि ड्रग्स और अल्कोहल से सेक्स परफॉर्मेंस अच्छा होता है. लेकिन एक्चुअली वो झूठ है, वो मिसकंसेप्शन है. अच्छा नहीं हो रहा होता है, खराब हो रहा होता है. कभी अच्छा नहीं होता है, खराब होता है. इसलिए कभी मिसकंसेप्शन नहीं होना है, गलत फहमी नहीं होना है, वो झूठ में नहीं जीना है.
और हम लोग सोचते हैं एडिक्शन इज ए चॉइस, एडिक्शन को एक चॉइस मानता है, एक चॉइस सोचता है, नहीं समझ पाता है। पहले में हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि ड्रग्स ऐसे चीज है, सोचते हैं कि हम कब भी पी सकते हैं, कब भी छोड़ सकते हैं। इज अकॉर्डिंग टू यू। हम कल पिएगा, 3 दिन नहीं पिएगा, 1 महीना नहीं पिएगा, 2 महीना नहीं पिएगा, इंजॉयमेंट के लिए 2 महीना का पिएगा। ड्रग्स को जब भी चाहे पी सकता है, जब भी चाहे छोड़ सकता है, ऐसा हम लोग सोचता है। अपना टॉलरेंस, कोई तो अपना टॉलरेंस लेवल इतना हाई है बोल के सोचता है कि हम बर्दाश्त कर सकेगा। इसलिए हमको कभी कभी पार्टी में या कुछ फ्रेंड्स गैदरिंग में कभी 1-2 बार पीने से हमको प्रॉब्लम नहीं होगा, हम छोड़ पाएगा, कुछ भी असर नहीं होगा हमको, ऐसा मिसकंसेप्शन रखता है। लेकिन ड्रग्स ऐसे चीज नहीं है। ड्रग्स एक बार आपने यूज कर दिया तो उसको इतना आसानी से छोड़ने वाला चीज नहीं है, क्योंकि उसका विड्रॉल का समय होता है 72 आवर्स होता है, और आप इंसोम्निया से 25 डेज लड़ना पड़ेगा। आपका 27-28 डेज होके आपका रिकवरी में आता है। अदरवाइज ड्रग्स तो 3-4 दिन में, 1-2 दिन में ठीक होने वाला चीज तो नहीं है, बहुत लंबा समय लगता है, 28 डेज। तो इसलिए 28 डेज ठीक होने के लिए तो घर में तो इम्पॉसिबल है, इसलिए लोग सेंटर जाना पड़ता है। तो इसलिए अवेयर कर रहा है कि मिसकंसेप्शन नहीं होना है, गलत फहमी नहीं होना है कि हम एक बार यूज करेगा, 2 बार यूज करेगा, हम एनी टाइम छोड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स चीज ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आप लोग स्टूडेंट लोग स्पेशली मिसकंसेप्शन मत रखिए कि ड्रग्स को आप 1 बार पीगा, 2 बार पीगा, ऐसा नहीं होता है। आप छू दिया तो आप बहुत तकलीफ में होगा, बहुत आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। उसका बाद सोचता है बियर जो है, बियर इज नॉट ए हार्ड ड्रिंक सो इट कैन बी कंज्यूम, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बियर तो हल्का ड्रिंक है, लड़की का ड्रिंक है, ऐसा कोई बहुत सारा बात बोलता है, तो उसमें हम लोग बियर पी देता है। तो बियर पीना और हार्ड ड्रिंक पीना एक्चुअली वो सेम है, वो अल्कोहल ही है। इसलिए मिसकंसेप्शन नहीं रखना है कि आप बियर पी सकते हैं, हार्ड ड्रिंक का जितना तो नहीं है। तो इसलिए मिसकंसेप्शन, गलत फहमी नहीं होना है। बियर, अल्कोहल, ऑल दे आर अल्कोहल। और ऐसा सोचता है एक समय में आप अपना दोस्त को गुड टाइम बिता सकने के लिए आपको दारू पीना है। आपका अच्छा दोस्त का साथ अच्छा समय बिता सकने के लिए आप ड्रग्स पीना है। और अपना दोस्त को खुशी देने के लिए हम ड्रग्स और दारू पीना है। ऐसा सोच के बहुत आदमी लोग का ऐसा सोच होता है कि वो लोग को बोरिंग लगेगा, मेरा नहीं पीने का कारण मेरा दोस्त लोग को बोरिंग लगेगा, इसलिए हमको पीना पड़ेगा। या वो लोग का साथ अच्छा समय बिता सकने के लिए, वो लोग का साथ घूम सकने के लिए, वो लोग का साथ रह सकने के लिए हम ड्रग्स और दारू पीगा, ऐसा चीज होता है। तो हम बता रहे वो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। आपका दोस्त पीता है, आपको अपना दोस्त को दारू पी के खुशी कराने का कोई जरूरत नहीं, अपना दोस्त को ड्रग्स पी के खुशी कराने का कोई जरूरी नहीं है। अगर वो पी रहा है तो उसका साथ आपका दोस्ती करने का कोई जरूरी नहीं है। अब अपना दोस्त बना सकता है, दुनिया भर का दोस्त है, वही एक जो ड्रग्स पीता है, वही एक जो दारू पीता है, उसका साथ ही बैठना है या तो उसका साथ ही दोस्ती करना है, ऐसा नहीं है। इसलिए अपना दोस्त को खुशी कराने के लिए, अपना दोस्त का साथ गुड टाइम्स बिता सकने के लिए हम लोग ये सब चीज कभी भी नहीं लेना है। और हम लोग एक मिसकंसेप्शन, हमेशा हम लोग का साथ एक मिसकंसेप्शन होता है कि ड्रग्स जो, अल्कोहल जो है इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ड्रग्स का जितना। यू बिकम टू कंपेयर ड्रग्स विथ अल्कोहल। ड्रग्स, दारू इतना खराब नहीं है ड्रग्स का जितना। दारू आप पी सकते हैं, या मेरा बेटा बेटी कम से कम ड्रग्स तो नहीं पी रहे, दारू तो पीने दो। ऐसा बहुत सारा चीज होता है कि यू मिनिमाइज योर एडिक्शन, ऐसा होता है। हम लोग अपना एडिक्शन को मिनिमाइज करता है। इसलिए बता रहे जितना ड्रग्स खराब है, अल्कोहल भी इतना ही खराब है। इसमें कंपेयर करने वाला बात है नहीं, उसका मिसकंसेप्शन नहीं रखना है। कंपेयर करने वाला बात है नहीं है। ड्रग्स जितना ही खराब है, दारू भी इतना ही खराब है।
Everybody is doing it. सब कर रहे, सब पी रहे, सब घूम रहे, इसलिए हम भी घूमेगा. सब पी रहे पार्टी में, इसलिए हमको भी पीना है. सब कर रहे, इसलिए हम भी कर रहे. ऐसा चीज मिसकंसेप्शन नहीं होना है. दूसरा लोग पॉइजन पी रहे तो तुम भी पीना है बोल के तो जरूरी नहीं है. सब कर रहे इसलिए तुम भी कर रहे. तो दूसरा लोग पॉइजन पी रहे, ये मतलब नहीं है कि तुम भी पॉइजन पीना है. तो हम लोग का आज का मिस एंड मिसकंसेप्शन को कभी भी नहीं रखना है, मिसकंसेप्शन नहीं रखना है. अपना खुद को क्लियर करना है कि मिसकंसेप्शन से हम लोग एडिक्शन में घुस सकते हैं. नाउ जब हम लोग ड्रग्स का एडिक्शन में धीरे धीरे चला जाता है तो आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट इन जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, ड्रग्स में आप कदम फेंक दिया, दैट मीन्स आपका कुछ भी काम ढंग से नहीं चल रहा होता है. आपका बिजनेस में इफेक्ट होता है, आप इंटरेस्ट नहीं होता है, आप जॉब में इंटरेस्ट नहीं होता है. स्पेशली स्टूडेंट जो छोटा उम्र में या यंग एज में ड्रग्स लेने लग जाता है, वो लोग अपना एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा. इम्पॉसिबल है, एजुकेशन कंप्लीट करना इम्पॉसिबल. क्योंकि मेन इफेक्ट जो आपका ब्रेन में पड़ता है तो आपका मेमोरी लॉस हो जाएगा. इसलिए कभी भी ड्रग्स और दारू स्टूडेंट समय तो बिल्कुल नहीं लेना है. अपना पढ़ाई में फोकस करना है. नाउ ट्री ऑफ एडिक्शन. What you are going to lose in your life because of addiction. पहले है आप अपना हेल्थ लॉस करेगा, अपना बदन, अपना वीकनेस, वीक होगा बदन लॉस करेगा. उसके बाद अब क्या लॉस होगा? आप रेस्पेक्ट लॉस होगा. यू विल नेवर गेन रेस्पेक्ट आपका बिल्कुल नहीं रहेगा. आप एक बार एडिक्शन में घुस गया, आपका रेस्पेक्ट नहीं रहेगा. उसका बाद लव जो हर तरफ से जैसे आपको एक अच्छा इंसान समय करता था, एक अच्छा बच्चा समय करता था, अभी जब एक बार आप ड्रग्स में घुस गया तो आपको हर तरफ से प्यार करना कम हो जाएगा. रिलेशनशिप बहुत बिगड़ता है ड्रग्स का कारण. हम लोग का कभी कभी ऐसे भी होता है, कोई ड्रग्स पीने का कारण वाइफ जो है उसको छोड़ के चला जाता है. एक तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड को छोड़ के चला जाता है, या एनीथिंग, या माँ बाप जो है अपना बच्चा के अलग होके अपना घर बना लेता है. ऐसा बहुत सारा चीज होता है जो रिलेशनशिप में हम लोग होता है. और आप लोग तो अभी तक नहीं खोया होगा, लेकिन ऐसा रिकवरिंग एडिक्ट बहुत सारा है मेरा पास, मेरा रिहेब सेंटर में, जो अपना वाइफ खो चुका है, जो अपना बच्चा खो चुका है, जो अपना प्रॉपर्टी खो चुका है. उसका बाद कोई तो इतना रॉक बॉटम हिट करके भी कि उसका सिर्फ सुसाइड ही बचा है और कुछ नहीं बचा है. ऐसा बहुत सारा केसेस है. इसलिए आप लोग को एडवांस में बता रहा है कि ये सब नहीं करना है. एंड यू लॉस ट्रस्ट. अब एक तो विश्वास जो आपको करता है वो टोटली खो देता है. जो विश्वास आपका पेरेंट्स आपको करता है, जो टीचर्स विश्वास आपको करता है, जो फ्रेंड आपको ट्रस्ट करता है, वो ट्रस्ट एक बार आप ड्रग्स पी दिया, आप चोर करने लग गया, झूठ बोलने लग गया, तो वो ट्रस्ट भी आप खो देता है. एंड मेमोरी. नाउ सेल्फ स्टीम. स्टूडेंट लोग का क्या होता है कि ज़्यादातर सेल्फ स्टीम लो होता है. जब तुम नशा पानी करेगा, ड्रग्स लेगा, तेरा इतना कॉन्फिडेंस होगा नहीं होगा कि अपना दोस्त से बात कर सके, स्टेज में उठ सके, कुछ परफॉर्मेंस कर सके. आपका जो है सेल्फ स्टीम जो है लो हो जाएगा. एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियली. फाइनेंशियल तो सब जानता ही है, वीक होता ही है. आप लोग जब भी ड्रग्स लेता है अनमैनेजेबल होता है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल आपका पास नहीं होता है. नाउ द लास्ट बोर मत हुए, लास्ट बोलेगा. इस भी थोड़ा लंबा तो हो गया फिर भी. लास्ट वन इज रॉक बॉटम. What we call is rock bottom is everything gone, helpless, end stage of a addict. जब ड्रग्स एडिक्ट का एंड स्टेज होता है, सब कुछ खो चुका होता है, उसको हम लोग जो है रॉक बॉटम बोलते हैं. रॉक बॉटम में क्या होता है? यू आर नाउ हेल्पलेस. आप हेल्पलेस है, कोई भी आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं है, आपको कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है. आप अकेला पड़ गया. नाउ यू आर हेल्पलेस, नो वन इज रेडी टू हेल्प यू.
because of your addiction, because of your deeds. उसका बाद now you become alone. अब अकेला हो गया, कोई भी साथ नहीं है तेरा, क्योंकि ड्रग्स एडिक्शन में आपने सब खो दिया, घर खो दिया, माँ पिताजी खो दिया, दोस्त खो दिया, अपना फाइनेंशियल जो पैसा था वो खो दिया, अपना घर खो दिया. Now you are alone. There is no one to help you. सब आपको घिन कर रहा होता है, वो स्टेज पहुंच जाता है रॉक बॉटम में. और एवरीथिंग गॉन वही बता रहा है, एवरीथिंग सब कुछ जा चुका है, तेरा घर जा चुका है, माँ पिताजी जा चुका है, दोस्त जा चुका है, मायकी छोड़ के जा चुका है, अकेला पड़ गया तुम, क्योंकि एडिक्शन का कारण तुमसे फेड अप होके सब तेरा लाइफ से निकल गया, तो अभी तुम अकेला रह गया. उसको बोल रहे रॉक बॉटम. नाउ यू आर अलोन. एंड स्ट्रिक्ट लाइफ, हम लोग तब जाके क्या होता है, स्ट्रिक्ट लाइफ हो जाता है. स्ट्रिक्ट लाइफ, हम लोग ना घर परिवार होता है, ना हम लोग का गाइडेंस करने वाला होता है, हम लोग स्ट्रिक्ट लाइफ का लाइफ जीने लगता है. उसके बाद लास्ट जो है, जब तेरा पास कुछ ही नहीं रहा, तेरा घर चला गया, माँ पिताजी चला गया, तेरा दोस्त चला गया, तेरा हर एक कीमती, तेरा लव वंस चला गया, तेरा हर एक कीमती चीज चला गया, तो लास्ट में तेरा क्या रह जाता है, सुसाइड टेंडेंसीज रह जाता है. तेरा सुसाइड करने का अलावा तेरा पास रास्ता नहीं है. तुम जीने का मन नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा तेरा जीने का, तो लास्ट में सुसाइड टेंडेंसीज. इसलिए ड्रग्स जो है बहुत रिस्क है. वैसे भी अभी सेंटर में, सब सेंटर में ऑब्जर्व किया गया है, रिहेब सेंटर में, कि ज्यादातर बच्चा, छोटा लड़का लोग जो है क्या है, HIV बीमार से प्रॉब्लम है वो लोग, क्योंकि वो लोग सिरिंज साथ में यूज करता है. आजकल का लड़का लोग है सिरिंज साथ में यूज करता है, इसलिए ज्यादातर आजकल रिहेब सेंटर में भी छोटा लड़का बड़ा लड़का नहीं है, ड्रग्स जो है, सिरिंज जो है, छोटा है, स्टूडेंट है, बड़ा है, धनी है, नहीं देखता है. इसलिए बीमार जो HIV जो है बहुत पेशेंट में पाया गया है. इसलिए अवेयर कर रहा है, क्योंकि उसका अभी तक क्यूरेबल नहीं है. इसलिए आपको सबको प्लीज अवेयर कर रहा है, बीमार लगने के बाद दुख होके या सोच के या रिग्रेट करके या तुम अच्छा बनने के लिए कोशिश करके फायदा नहीं है. वो लगने का आगे अच्छा आदमी बन जाओ, अच्छा स्टूडेंट बन जाओ, अच्छा इंसान बन जाओ. वो बीमार लगने का आगे, कुछ बड़ा घटना होने का आगे, या आपका रॉक बॉटम हिट करने का आगे, या आपको ड्रग्स जो हेल्थ को खराब करने का आगे, आप लोग नहीं पीने से वही अच्छा है. हम तो स्टूडेंट लोग आज सच में भी बहुत खुश है. एक स्टूडेंट इतना ह्यूज गैदरिंग में थोड़ा सा वर्ड शेयर करने मिला है, इसलिए बहुत खुश है हम. क्योंकि अगर किसी को एक वर्ड भी पहुंच रहा होगा, छू रहा होगा, तो मेरे लिए उससे बड़ा बात क्या हो सकता है. इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए थैंक यू. Thank you, Sri Yasong Teyang, for sharing such insightful depth and knowledge of drug abuse, its misconception, and etc. Now we will have a performance by Doi Dance for the Doi Dance. So I would like to invite them on the stage. A Doi Dance. We have among us one of the dignitaries. So I would like to invite him on stage. Sir ABC Sir, Tirap District to address the gathering. Please sir on the stage. A very good morning to one and all present here. First of all, apologies from my side, from the district administration side, the DC sir couldn't make it today, so I have to fill in for him. He had some urgent work, so I'll have to come. So what is the purpose of this program? This entire program falls under the umbrella of Nasha Mukt Bharat, which is a program of Government of India, and under this we are having this initiative here on raising the awareness against the illicit poppy cultivation, especially in this Tirap district of Arunachal Pradesh. So why we are doing this program in the school? Because the target that we want to achieve is that to create the awareness among the students. जो यूथ है हमारा तिराप का, उनके लिए अवेयरनेस उनमें हमने अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करनी है, सो दैट उन्हें हमें ड्रग से दूर रख सकें. आपने अभी एक टेस्टिमोनी सुनी जो हमारे रिकवर्ड इनमेट हैं, जो एक टाइम पर एडिक्ट थे,
उन्होंने अपनी कहानी बताई आपको, एंड ही टोल्ड यू ऑल दैट ही वाज द वेरी स्टूडेंट ऑफ दिस वेरी इंस्टीट्यूट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट ही हैज़ वन डिसएडवांटेज एंड यू गाइज हैव वन एडवांटेज. वो मैं बताऊंगा क्या. ही मेड ए चॉइस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जिसकी वजह से उनके काफ़ी साल जो हैं वो बर्बाद हो गए. और आपको अभी एक चॉइस, ऐसी चॉइस बनानी है, ऐसी चॉइस, यू हैव ए चॉइस टू मेक जिससे आपके जो साल हैं वो बच सकते हैं. आपके पास अभी ऑप्शन है, आपके पास अभी अपने करियर को एक डायरेक्शन देने का ऑप्शन है. आज अगर जो वो रिकवर्ड इनमेट है, अगर आज वो चाहें कि वो कुछ करना चाहते हैं, कैन ही बी ए डॉक्टर, कैन ही बी ए इंजीनियर? नो, ही कैन नॉट, बिकॉज ही हैव लॉस्ट the very productive years, the very useful years of his life in which one can do anything substantially. लेकिन आपके पास अभी वो चॉइस है कुछ करने की. आपके पास वो चॉइस है कि आपको जो अपना डायरेक्शन, जो अपना करियर ग्रोथ, जो अपना पाथ डिसाइड करना है, किस तरफ लेके जाना है अपने करियर को. आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, आपके पास वो चॉइस है और आप वो चॉइस आज ले सकते हैं. तो इसीलिए ये जो प्रोग्राम है पूरा नशा मुक्त भारत का और इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन के अगेंस्ट जो अवेयरनेस है वो स्कूल में किया जा रहा है, ताकि हम जो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स भी जो 8th 9th 10th 11th के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है. क्योंकि ड्रग्स जो है वो शुरू में हम बोलते हैं कि आप ड्रग्स को चूज़ करते हो, यू चूज़ टू डू द ड्रग अब्यूज़, यू चूज़ टू ट्राई द ड्रग्स. बट एक टाइम के बाद आपकी वो जो है चॉइस है वो आपके हाथ में नहीं रहती. देन ड्रग चूजेज यू. फिर आपका वो कंट्रोल, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि शुरू में आप कर लेते हैं, आपको लगता है कि हम छोड़ देंगे बाद में, लेकिन उसके बाद आपका जो कंट्रोल है अपने आप पे वो ख़त्म हो जाता है. एक एडिक्शन, तभी हम इसको ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं. बिकॉज कोई भी चीज़ जो ज़्यादा मात्रा में ली जाए, जिससे आपको शुरू में एक अच्छी फीलिंग आती है ड्रग लेने से, लेकिन वो बाद में एक आपकी आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है जिसे आप कभी छोड़ नहीं सकते. आप लोगों के लिए स्कूल में ये प्रोग्राम किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को हमें बचाना है, आप लोगों को हमें एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना है, आप लोगों को एक अच्छा करियर काउंसलिंग देना है, सो दैट आप लोग अपने करियर, अपने फ्यूचर में, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, अपने गाँव का, अपने तिराप डिस्ट्रिक्ट और ओवरऑल अरुणाचल का नाम रोशन कर सकें और अपने अरुणाचल की ग्रोथ में एक पार्टिसिपेट कर सकें अच्छे से. जैसे कि मैंने बताया कि ड्रग्स जो है वो बड़ा सीक्रेटली आपकी लाइफ में एंटर करेगी. शुरू में ये सबसे बड़ा पीयर प्रेशर होता है. जब अपने आसपास अपने दोस्तों को देखेंगे कि हमारे दोस्त ड्रग्स कर रहे हैं तो हम भी ट्राई करते हैं, क्योंकि शुरू में जब वो ड्रग्स करते हैं तो एक तरह से कूल दिखने की भी कोशिश करते हैं कि देखो मैं दारू पी रहा हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ. तो वो एक कूल दिखाने की खुद को कोशिश करते हैं और उस चक्कर में आप भी ट्राई करते हैं कि अगर ये कूल दिख रहा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी ड्रग्स करूँगा. तो ये सब आप शुरू में करना शुरू कर देते हैं. तो इवेंचुअली क्या होता है, ये सीक्रेटली एंटर करता है, लेकिन एक टर्माइट की तरह, जैसे लकड़ी में एक दीमक हम बोलते हैं ना कि दीमक लग जाता है लकड़ी को. शुरू में हमें दिखता नहीं है, वो लकड़ी बाहर से बड़ी अच्छी दिखती है और वो अंदर में दीमक लगता है और आहिस्ता इस लकड़ी को इतना खोखला कर देता है कि एकदम वो लकड़ी टूट के बिखर जाती है. फिर हमें पता लगता है कि हमने क्या किया, मतलब अपनी ज़िंदगी के साथ. तो इस तरह से ही ड्रग्स जो है वो आपकी लाइफ को तबाह करती है, अपनी लाइफ को बर्बाद करती है. सबसे पहले ये आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगी, दूसरा आपकी जो सोशल लाइफ है उसको अफेक्ट करेगी, आपकी फैमिली को अफेक्ट करेगी, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर जाना शुरू कर देंगे. जो समझदार फ्रेंड्स होंगे वो आपका साथ छोड़ देंगे, वो आपकी कंपनी छोड़ देंगे. वो नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे दोस्त बनाएं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, क्योंकि सोसाइटी में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी. लोग आपको बोलेंगे, ऐसे फिंगर पॉइंट करके बोलेंगे कि वो जा रहा है जो नशा करता है, वो जा रहा है वो जो एडिक्ट है, वो जा रहा है वो जो रिहैब में था. अभी थोड़ी देर पहले ही आपके प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि लास्ट ईयर ही 3 बच्चे इस स्कूल के जो हैं उनको वो यहाँ से ड्रॉप आउट हुए हैं क्योंकि वो ड्रग लेना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, वो रिहैब में उनको जाना पड़ा था. सो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बिकॉज अपने वो प्राइम टाइम में थे जब वो स्कूल में एजुकेशन लेके कुछ करना चाहते थे, कुछ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए. तो ये डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आपको उस राह पे चलना है जहाँ आपको अच्छी राह पे चल के अपना करियर और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है. एक और इफेक्ट जो ड्रग का है हेल्थ की ही अगर हम बात करें तो रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि केसेस ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस इन इंटायर अरुणाचल प्रदेश इज ऑन द राइज. अरुणाचल प्रदेश बड़ी एरिया में एक बड़ा स्टेट है, लेकिन आबादी के मामले में बड़ा ही छोटा सा स्टेट है. पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज जस्ट 13 और 14 लाख.
जिस स्टेट से मैं आता हूँ, जम्मू कश्मीर से मैं आता हूँ, वहाँ की आबादी 2 करोड़ है। और आप सोचिए कि 2 करोड़ आबादी और 13 लाख आबादी, लेकिन जिस स्पीड से जो HIV और हेपेटाइटिस के केसेस यहाँ पे राइज कर रहे हैं, वो मेरे स्टेट में वहाँ पे राइज नहीं कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग दी मोर पॉपुलस देन अरुणाचल प्रदेश। सो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ड्रग यूज़। बिकॉज ड्रग यूज़ आप शुरू में हम लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं इस चीज़ को। हमारे गाँव, मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कल्चर है कि गाँव में लोग, जो बूढ़ा सब लोग हैं, वो कानी वानी पीता है, तो वो एक तरह का कल्चर है। तो शुरू में वो उसको एक दवाई की तरह लेते थे, हिस्टोरिकली एक दवाई की तरह कानी को लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कानी से शुरू करता है अल्कोहल, उसके बाद जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, हीरोइन, ये सब, मॉर्फिन, ये सब, और वो फिर इंजेक्टेबल्स लेना शुरू कर देता है। और जब वो इंजेक्टेबल्स लेता है तो वो सिरिंजेस यूज़ करता है। तो उन सिरिंजेस की वजह से जो STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो HIV, हेपेटाइटिस, ये सब फैल रहा है। और दिस इज़ ऑन द राइज इन अरुणाचल, स्पेशली इन द ईस्टर्न साइड, बिकॉज हमारा जो बॉर्डर है वो भी म्यांमार से लगता है और बाहर से भी ड्रग्स आ रहा है, बाहर की स्टेट से भी ड्रग्स आ रहा है। तो इसलिए हमारे ये केसेस जो हैं वो भी राइज पे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग अगर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th का जो आपका एज होता है, इसमें आपका मेमोरी बड़ा शार्प होता है। इसमें आप लोग चीज़ों को बड़ी अच्छे से और जल्दी से समझते हैं। और इसमें इस समय में आपके अंदर एक लालसा, एक चाह होती है कि हमें कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है। लेकिन जब आप ड्रग्स लेना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको लगेगा कि आपकी मेमोरी जो है वो वीक होती जा रही है। आप पढ़ेगा जाके घर पे, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। दिस इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग द ड्रग्स। कंसंट्रेशन, आपका क्लास में मन नहीं लगेगा, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन यू आर लॉस्ट, आप समझ ही नहीं रहे हो। टीचर बोल रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके कान के ऊपर से जा रहा है, इधर से सुना उधर से निकला, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। और इस वजह से क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो जब ये सब देखते हैं, आपके रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, आप फेल हो जाते हो कुछ क्लासेस में, तो पेरेंट्स आपके सफ़र करते हैं, आपकी फैमिली सफ़र करती है। आप फेल हो जाते हो, आपको दोबारा कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं, आपके कलीग्स जो आपके अच्छे दोस्त थे, आपके साथ बैठते थे क्लासेस में, वो पास करके आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो एक बड़ा ही विशियस सा साइकिल, आप उसमें फंस जाएंगे और उससे रिकवर होने का आपको कभी मौका नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन योर करियर, टू फोकस ऑन द राइट डायरेक्शंस। कभी भी इस तरफ मत जाइए, ये डिसीजन आपको लेना है, ये चॉइस आपकी है, बिकॉज आपका फ्यूचर स्टेक पे है। मैं आज यहाँ पे बोल के चला जाऊँगा, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को, वो आपको करना है। बिकॉज आई एम ऑलरेडी स्टैंडिंग एट सम पोजीशन। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन डिसीजन आप लोगों को लेना है, बिकॉज आपका फ्यूचर स्टेक पे है। अब इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे और भी बहुत बड़ी बड़ी ड्रग्स हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो बाकी बाहर से ड्रग्स आ रही हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी ड्रग्स हैं। पॉपी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन पॉपी जो है वो इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों को फ्यूल करती है। सबसे पहले आप पॉपी से शुरू करेंगे, पॉपी का कल्टीवेशन करेंगे, फिर वो पॉपी जो है वो जब हार्वेस्ट की जाती है, फिर उसको यूज़ किया जाता है बाकी एडवांस ड्रग्स बनाने में। तो इसलिए हमें रूट कॉज को पकड़ना है। रूट कॉज जो है हमारी इलीगल पॉपी कल्टीवेशन, उसको पकड़ना है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज़ आल्सो वेरी सपोर्टिव इन दिस। हमें भी ये है कि जो लाजू का कुछ एरिया है, जैसे मैं EAC लाजू था अपनी ट्रेनिंग में, तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ एरिया में जो पॉपी कल्टीवेशन होती है, तो हमने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक प्लान बनाया था कि आप लोगों को एक हॉर्टिकल्चर और कैश क्रॉप्स की तरफ इनकरेज किया जाए वहाँ के लोगों को, सो दैट जो हमारा प्रॉब्लम है रूट कॉज, उसी को ख़त्म कर दें। जब हम सोर्स ही ख़त्म कर देंगे तो डिमांड भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द वे टू एड्रेस। सुपरिटेंडेंट मैम ने आपको बताया कि जो NDPS एक्ट है उसकी पनिशमेंट जो हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। तो उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि उसमें देयर इज़ ए क्राइटेरिया फॉर अमाउंट ऑफ द ड्रग्स टू बी फाउंड विद द पर्सन। अगर स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स, स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है कि 5 ग्राम 10 ग्राम इतना ड्रग्स किसी से पकड़ा जाता है, तो स्मॉल पनिशमेंट है, जैसे उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया और 1 साल तक की पनिशमेंट। लेकिन अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा ड्रग्स पकड़ा जाता है तो द पनिशमेंट इज अप टू 10 to 20 years एंड विच में लीड अप टू डेथ पेनल्टी आल्सो। और लार्ज स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा का क्या मतलब है कि 25 ग्राम, अगर पॉपी की हम बात करें तो 25 ग्राम, तो 25 ग्राम पॉपी कुछ भी नहीं होता है, इतना सा पॉपी होगा वो 25 ग्राम होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपसे कभी पकड़ा भी जाता है, चाहे वो कमर्शियल नहीं है, चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए भी आपका है,
अगर कोई करता पकड़ा गया 25 ग्राम से ज़्यादा तो 10 से 20 साल के लिए आपको सज़ा होगी और 10 लाख का फाइन आपको होगा, जो आप कभी दे नहीं पाएंगे। और 20 साल अगर आपको सज़ा हो जाती है तो आपका पूरा करियर, पूरा फ्यूचर, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आप मानिए आपके 20s 30s के 20 साल अगर जेल में चले जाते हो तो पीछे कुछ नहीं बचता। अल्टरनेटिव्स की मैंने ऑलरेडी बात की है कि हम ट्राई करेंगे कि जो पॉपी कल्टीवेशन है उसको रूट से ख़त्म किया जाए। लाजू वगैरह एरियाज़ में जो है हम कैश क्रॉप्स वगैरह, जैसे यहाँ पे इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतनी अच्छी क्रॉप्स हो सकती हैं, इतना अच्छा हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब हम डेवलप कर सकते हैं। तो वी एज ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस एंड वी आर प्लानिंग सम प्लान्स टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन दोज रिमोट एरियाज ऑफ लाजू, सो दैट इसको हम रूट से ही ख़त्म कर दें, पॉपी कल्टीवेशन, ताकि सोर्स ही ख़त्म कर दें तो कुछ बचे ना। अब सब इसके बाद एक रिक्वेस्ट है मेरी स्टूडेंट से कि जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि चॉइस इज़ योर्स, यू हैव टू मेक द चॉइस। You guys are the brand ambassador of the society. अगर सोसाइटी को एक पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जाना है तो you guys are the brand ambassadors। क्योंकि आप लोग स्कूल में आते हो, आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, आप लोग सीखते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोसाइटी से बड़ा टीचर कोई नहीं है। आप वो सीखते हो जो आपके आसपास है। सबसे पहला टीचर आपका जो है वो आपकी सोसाइटी है। आप जैसा सोसाइटी में देखोगे आप वैसा ही करोगे। तो आपको एज ए ब्रांड एम्बेसडर उस सोसाइटी में चेंज लेके आना है। आपको अगर कोई नशा करता दिखता है तो आपको उसको बोलना है, आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। हमने लास्ट ईयर एक ऐसा प्रोग्राम भी लेके आए थे कि अगर आप सीक्रेटली पुलिस को इन्फॉर्म करते हो उन लोगों के बारे में जो ड्रग्स कर रहे हैं, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, तो हम आपको कैश इंसेंटिव और प्राइजेस भी देंगे और आपकी आइडेंटिटी भी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, वो सीक्रेट रखी जाएगी। आप डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको लगता है कि ये ड्रग्स करना इसने शुरू किया है और आपको उसकी फिक्र है कि ये ड्रग करते हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा या बाकी लोगों को भी इसका नुकसान होगा, तो प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के पास आइए, प्लीज़ पुलिस के पास जाइए, उनका कंप्लेन कीजिए, सो दैट वो जो उसकी ज़िंदगी बच जाए और उसके साथ बाकी जो लोग इफेक्ट होंगे उनकी भी ज़िंदगी आप लोग बचा पाएंगे। इसके लिए आपको करेज दिखाना होगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सोसाइटी, तो इसके लिए आपको करेज दिखाना होगा। आपको इसके लिए हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, हमारा कोई नाम ले लेगा, हमें कोई कुछ बोलेगा, नहीं। बिकॉज करेज आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपको इस पूरे अपने तिराप ज़िले को डेवलप बनाना है, पूरे अरुणाचल को डेवलप बनाना है, तो उसके लिए आपको एक अहम रोल प्ले करना है, तो इसलिए आपको करेज उसमें जो है वो दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके साथ है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से, प्लीज़ डू कम टू अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। एट द एंड, मैं ज़्यादा लंबी स्पीचेस मैं करता नहीं हूँ, मुझे आदत भी नहीं है, तो एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि पिक्चर योर सेल्फ, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद पिक्चर योर सेल्फ कि वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ। जैसे while I was preparing, while I was in my college, तो I had already pictured myself कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद I'll be an IAS or IPS. So when you picture yourself, na, you get the motivation. You imagine yourself at some position, you get the motivation, you get the self-drive which will motivate you to achieve that goal. तो इमेजिन योरसेल्फ कि आज से 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सभी के सभी IAS बन जाओ, IPS बन जाओ। देयर आर लॉट ऑफ करियर्स। अरुणाचल हैज़ अ ह्यूज टैलेंट। मतलब अभी हमने डांस देखा, सिंगिंग देखी, मतलब यहाँ पे मैं देखता हूँ अरुणाचल में हर दूसरा आदमी सिंगर है, हर दूसरा आदमी डांसर है, हर दूसरा आदमी स्पोर्ट्समैन है। आप फुटबॉल इतना अच्छा खेलते हो, वॉलीबॉल इतना अच्छा खेलते हो, तो आप उसी में अपना करियर बनाने की सोचो। पिक्चर योरसेल्फ कि मैं स्पोर्ट्समैन बनूंगा, मैं IAS बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। तो यू हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस। तो जब आप उस चीज़ को पिक्चर करोगे तो तभी आप एक गोल जो है वो सेट करोगे और उसको अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में काम करोगे। और ऐसे जो ड्रग अब्यूज़ एंड ये सब आदतें, बुरी आदतें हैं, इनसे अपने आप को दूर रख पाओगे। एट द एंड आई हैव फ्रेम्ड वन प्लेज for you guys for this program, and I want everyone to rise on your seats and we'll take a pledge together on this very day. Please everyone, please rise. I will say the pledge and you guys will repeat after me. Please raise your right hand. I pledge that I will never consume any form of drugs, alcohol or any substance that harms my body, my mind or my future. I pledge that
I will protect myself from peer pressure and wrong influences, and will have the courage to say no when something is harmful. I pledge that I will respect my parents' dreams, my teachers' guidance, and my community's trust by staying on the right path. I pledge that I will encourage my friends, brothers and sisters, to live a healthy, drug-free life. I pledge that I will spread awareness against the illicit poppy cultivation and will support efforts to replace it with legal and beneficial livelihood. I pledge that I will keep myself busy in studies, sports and creative activities so that I can contribute positively to society. I pledge that I will be a responsible citizen who stands for truth, health and progress. I pledge that I will work toward building a strong, bright and drug-free Tirap. Together, we say no to drugs, no to poppy cultivation, yes to life, yes to Nasha Mukt Tirap, yes to Nasha Mukt Arunachal, and finally yes to Nasha Mukt Bharat. Thank you so much.